morning, students. Now, so far we have studied and we have shared our study about the Mesopotamian civilization and its cities and role of Euphrates and Tigris rivers or different kinds of the economy, its great steppes, its vast about its vast desert and about the different cities and its certain and moreover its a writing system or its a trade commerce and role of temples in the growth of cities and many aspects we had studied in the uh, studied in Mesopotamian civilization regarding the Mesopotamian civilization students and last but not least a few points should be the focus and requires to be the focus that the Mesopotamian civilization, what the message and the knowledge this civilization is spread to the rest of the world. What the knowledge this civilization and how this civilization, no doubt, uh, became the pioneer of the other Bronze Age civilization. It proved to be the pioneer, a torch-bearing civilization, which thrown the lights on the other civilization of the world. And now it also provided and left a everlasting its legacy and its gifts, which the world is still now, this world is still now using and still the world will be obliged to this great civilization. Still, the obligations of the world towards this Mesopotamian civilization. The now students, this civilization occupies no doubt a significant position and place in the amongst the other Bronze Age civilization of the world. No doubt. And most significant legacy of this civilization was that this civilization developed development of the writing. This civilization left one of the outstanding skill to this human civilization, and that was the uh, writings. And the writing was that writing which developed in the Mesopotamian civilization. More scholars now believe that this art of writing developed फर्स्ट इन मेसोपोटामिया. बहुत से हिस्टोरियंस हैं जो उनका ओपिनियन है कि जो आर्ट ऑफ राइटिंग शुरू हुआ, जो स्टार्ट हुआ लिखने की, ये फर्स्ट टाइम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से शुरू हुआ. दिस बिगैन विद दैट, अंडरस्टैंड. और मोर ओवर, first thing. Second, now time, the scholars traditionally time the mathematicals and science. और इसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने मैथमेटिक्स के फील्ड में और साइंस के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली और दिस से नैरेटिव्स कुड बी द ट्रांसमिटेड ओरली. पहले था कि व्हेन द राइटिंग्स वाज नॉट इन प्रैक्टिस and human beings was the ignorant of the writing, how the knowledge and the expression of the human beings came and the passed on from generation to generations. So now it passed on from generation to generation by the orally, oral way, by the oral, and it was not a and transmitted. We can say the is a just a passed on
and transmitted by the oral methods, by the orally. Moreover, students, now orally transmission science in the transmission of science in absence of writing documents and text was very difficult, और particularly जो साइंटिफिक नॉलेज था बिना डॉक्यूमेंटेशंस का या बिना राइटिंग्स का रखना फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट वाज द वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द जनरेशन टू जनरेशंस एंड सम टैबलेट्स डेटिंग। अब जानते हैं कि मेसोपोटामिया की कंप्लीट जो हिस्ट्री है, जो हिस्टोरिकल जो वट एवर द हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस हैं या हिस्टोरिकल जो सोर्सेस हैं वो टैबलेट्स हैं, क्ले टैबलेट्स। एंड डेटिंग ए टैबलेट से, डेटिंग 1800 के लगभग में कोई टैबलेट से डिस्कवर्ड मेसोपोटामिया, दे कंटेन उस टैबलेट्स पर क्या लिखा है, व्हाट द डिटेल, द दिस टैबलेट्स नाउ हैविंग डिपिक्टेड द मल्टीप्लिकेशन पर मल्टीप्लिकेशंस डिपिक्टेड है। इस मैथमेटिक्स की बहुत सी चीजें, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर है, स्क्वायर्स, रूट टैबलेट्स है, और कंपोज ऑफ ए नाउ इंटरेस्ट एंड सजेस्टेड मैथमेटिकल कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसको जो पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्क्वायर रूट्स है, एंड मोर ओवर एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द रिमोट पास्ट ऑफ द, और इसने नो डाउट कि मैथमेटिक्स से डेवलप था। ये सारी मैथमेटिक्स की जो स्टडीज के जो ब्रांचेज हैं दैट वाज द डिपिक्टेड, एंड मोर ओवर दैट मेसोपोटामियन पीपल नाउ डिवाइडेड। अब यहाँ पे देखा जाए कि कैलेंडर्स बहुत वेल कैलेंडर सिस्टम में भी उन्होंने वर्ल्ड को दिया, जो कि दैट कैलेंडर सिस्टम इज स्टिल, दे आर गिवन कैलेंडर्स इज स्टिल प्रैक्टाइज्ड बाय द वर्ल्ड टुडे आल्सो। पूरे हम ओब्लाइज्ड हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेसोपोटामिया पीपल डिवाइडेड द होल ईयर इन द 12 months, that is today also, and moreover days divided into the into 24 hours, and now uh, hours were divided in the 60 minutes. So now this kind of the calendars now we find, and even the month were divided in the 4 weeks, उन्होंने month को भी divide किया। So this calendarly divided, and here we see that all of the know today division of the time is taken for granted all the countries of the world। मैंने पहले भी कहा कि पूरी दुनिया obliged है इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, जिसने कि कैलेंडर्स दिया जो कि आज भी हम उसे फॉलो करते हैं, और दिस वाज फॉलोड इवन आफ्टर द successor of Alexander the Great, Alexander the Great, who belonged to that civilization. Understand? Now, during the his successors of adopted this, and from और अलेक्जेंडर ने इसको रोम को दिया। From there, this knowledge went to the brought to the Rome, और रोमन एम्पायर से ये नॉलेज ट्रांसमिट किया गया इस्लामिक वर्ल्ड, एंड इस्लामिक वर्ल्ड से फ्रॉम इस्लामिक वर्ल्ड ये दिस नॉलेज transmitted to the European continents. Sorry. So we see that now in this way Mesopotamia now gave lots of. Next अगर देखा जाए कि tablet discovered from various sites speaks the occurrence solar और tablets पर solar और lunar eclipse के बारे में डिस्क्रिप्शन, कब होगा, when टाइम एक्यूरेट टाइम उसमें डिस्क्राइब किया गया कि किस ईयर में, किस मंथ्स में, एंड इवन द किस विच टाइम एट विच टाइम द सोलर और lunar eclipse will be the happen. And moreover, the Mesopotamians had the knowledge about the stars and their position, and about the galaxy constellations, पूरे स्टार्स के बारे में, पूरी स्पेस के बारे में उनको नॉलेज था, एंड मोर, और इन्वेंटेड, और उन्होंने टाइमिंग के लिए क्लॉक
वाटर क्लॉक्स का उन्होंने डिवाइस किया था इन्वेंशन. दे नाउ इन्वेंटेड द वाटर क्लॉक दैट डिवाइड्स वाटर क्लॉक्स का उन्होंने डिस्कवरीज किया. इसके साथ along with that the sundial measure time, sundial का भी और water clocks ये, and moreover there now इसके साथ साथ along with that astrology और astronomy both है. they were the astronomy के साथ astrology भी वो जानते थे. Mesopotamians people have the very much now knowledge about the constellation, and they knew that which stars how the positions of star now cast the impact on the and influences the human beings. किस तरह से कौन सा कॉन्स्टिलेशन है, कौन सा प्लैनेट है या ग्रह है, कैसे ह्यूमन बींग्स को वो प्रभावित करता है, कैसे इम्पैक्ट डालता है. हम लोग भी जानते हैं, जैसे ब्राह्मण्स कहते हैं कि आपका शुक्र या शनि और आपका बुध और ये बृहस्पति, राइट, दैट इसकी पोजीशन यहाँ है और यहाँ से ये कॉन्स्टलेशन यहाँ चेंज होगा तो दैट आपके दिन अच्छे हो जाएंगे. तो दिस काइंड ऑफ द constellations and the perception the Mesopotamians had. उनको ये भी they had the knowledge about that. And moreover we see that many schools came to be the established. planet का ह्यूमन लाइफ पर कितना प्रभाव था, इम्पैक्ट था, ये Mesopotamians had. सेकेंड थिंग, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में कि Mesopotamian now just cast the and gave the world and how the education was imparted. The first, many of the schools were established for the children's education and quality literature, high quality literature they preserved. जैसे और खासकर लिटरेचर, केवल बुक्स ही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टैबलेट्स भी एक लिटरेचर था. tablet writing on the tablets, it was the skill writing, or it contained the much high quality just a high quality subject matters written. And moreover the many schools came to be the established. Students read and copied earlier written tablets. Students जैसे पेज नहीं था, हम आप कॉपी से पढ़ते हैं, उसको टैबलेट से बच्चे टैबलेट्स पे जो रिटन थे उसको. टैबलेट वाज द बुक, टैबलेट वाज जस्ट द book, and students read copied written tablet. Most of the students would become now the record keeper. बच्चे बहुत कॉन्शियस थे, एजुकेटेड थे और इंथुजियाज्म था और ये रिकॉर्ड कीपिंग करते थे students. And now main functions was to keep the record. जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में चिल्ड्रंस यूज्ड टू हैविंग देयर रिकॉर्ड्स, उसके बारे में भी रिकॉर्ड करते थे. मोर ओवर some students were now trained to become the very much intellectual. बहुत से बच्चे highly उनका they were dipped into the study and have the deep knowledge, and now later on they turned into the intellectuals, high quality intellectuals. And moreover they would contribute significant building the work of the predecessors. और उन्होंने जो उनके predecessors का वर्क था, जो उनके फोर फादर्स के जो वर्क थे उसको उन्होंने कंपोज किया, उसकी कलेक्शंस किया एंड प्रिजर्व किया. We can, and moreover we can say that urban people were the well acquainted with the modern phenomena. Urban people had the well acquainted, वो बहुत अच्छी तरह से modern phenomena से परिचित थे और they knew about that. Moreover, and Mesopotamians had the traditions of the preserving the text and their tradition, and where the texts are preserved in libraries. The great libraries, now we can अब सोर्सेस में आप पढ़ लीजिएगा कि लाइब्रेरीज किस तरह की लाइब्रेरीज थे, हाउ दे वेयर
conscious of the preserving their records and knowledge, how they preserve and अपने नॉलेज को कैसे वो प्रिजर्व करते थे, रिकॉर्ड करते थे. वी कैन अंडरस्टैंड दिस. एंड मोर ओवर traditions encouraging the archaeological activities. Archaeological activities means what? The now those who were the concerned and associated with the work of excavation. Excavations, archaeological, an archaeology, an archaeologist is the person who now is involved and who works it and take on the works of the excavation of the ancient sites, ancient demolished buildings and the sites to recover, to get the old remains to form the history of a place. किसी जगह जैसे मान लीजिए आर्कोलॉजिस्ट हैं तो उनका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगम, सुरकोटोदा, आलमगीरपुर, रंगपुर, रोजड़ी एंड राखीगढ़ी, ये जितने बहुत से ऐसे साइट्स हैं हड़प्पा का, तो इसने किसने एक्सकेवेशन किया? आर्कोलॉजिस्ट. तो दे वेर द वेरी मच कंसर्न and the very aware of the archaeological excavation. और now what we today study, मैंने आपको वहाँ के सिटीज के बारे में कई बार मेंशंस किया होगा कि उसका एक्सकेवेशन हुआ, जैसे ऊर का एक्सकेवेशन हुआ, तो ऑन दैट बेसिस द बिल्डिंग्स वहाँ पे निकले, लेन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, या स्ट्रीट का क्या सिस्टम था उनका, हाउ द बिल्डिंग्स वेयर नाउ दे यूज्ड टू मेक constructs that. So about that, how do we know? By the archaeology, by the archaeologists now take on to know about the living and about the living conditions of the people and about their cultures, about their economic conditions, social condition, and the every walk of the and their political conditions. So now, students, we know a lot about that through the archaeology. तो आर्कोलॉजी क्या है कि हमारे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने का एक बहुत, इट इज द ए मच वांटेड, मच जस्ट रिक्वायर्ड सोर्सेस है हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने का. कहीं तो हम आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसके एक्सकेवेशन किया उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उस पर हम लोगों ने क्या किया, ऑन दैट फाइंडिंग्स और रिमेन्स ऑन बिल्डिंग्स एंड फ्रैगमेंट्स जो भी मिला उसको देखकर स्टडी करके उस पर हिस्ट्री कंपोज किया. तो ये मेसोपोटामियन पीपल्स वेयर द मच and provide the achievements of the Mesopotamians and civilization provide a place among the all the world. और यही रीजन है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस ने एक को पूरे दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, now these civilizations got the place. It's entitled to get the place. Students, now this chapter is almost and जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड I will send to you by the WhatsApp. Understand? I will drop it the questions and many questions associated with your previous chapters and for your doing in the register copy. And the next chapter, the next topics we are going to study an empire across the three continents, the Roman Empire. This empire we are going to study. Now, first of all, let's see. This empire was expanded, and Roman Empire had its expansion. Why the across the three continents means it's had the possession over the three continents. Which were those continents? Three continents. Now, it was the European continents that was under the, and moreover Asian continent and African continent. ये थ्री कॉन्टिनेंट में ये साम्राज्य था, अंपायर्स फैला.
तो इसीलिए फॉर दैट रीजन हम इसको क्या कहते हैं, दिस अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट, इट्स हैड द होल्डिंग ओवर द three continents. And moreover, we should see that this Roman Empire, I am going to, before just starting, a few words I will give about that. This empire was the vast empire, first thing. And second thing is that this empire extended almost more than the half part of the Europe, half part of the more than half parts of the Europe was under this control, and almost the entire Central Asia was under the control of this Roman Empire. And in the Africa, North Africa was under this control of this empire, and entire Mediterranean zones of Mediterranean, Danube rivers, Mediterranean zones, entire was under its control. इसके जो एम्पायर्स थे उनके कंट्रोल में. और यहाँ पे we shall see that how the Roman Empire was a republican empire, रिपब्लिक जिसको हम कहते थे, रोमन रिपब्लिक, लेकिन एक्चुअली ये रिपब्लिक नहीं था. नाउ द थ्री administrative pillar work there: king, senate and the army. ये तीनों का आगे हम पढ़ाएंगे, आपको एक एक करके आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. किंग्स, senate and the army and their relations, what the relation had. और रोमन एम्पायर्स का एक बहुत ट्रेडिशन था, टू विच द रोमन्स रूलर्स टिल द लास्ट try to preserve that Roman Empire. और वो क्या था, what that was the republic. लेकिन इनफैक्ट अगर आप हम मॉडर्न सेंस में देखें, अगर डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिपब्लिक नहीं था. लेकिन रोमन नाउ सेड इट इज द रिपब्लिक. तो सीनेट, आर्मी और किंग, थ्री पिलर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन, और तीनों ही बहुत पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट से थे. इसके साथ साथ रोमन एम्पायर में सबसे ये है कि स्लेवरी सिस्टम पर हम फोकस करेंगे, कि हाउ द स्लेव्स, व्हाई द स्लेव्स वेर यूज्ड एंड व्हाट द स्लेव्स वर्क एंड डिड, उनका पोजीशन क्या था सोसाइटीज में, how far they were tortured and they deployed at work, and what was the significance of the significance of slaves in the economy of Romans. वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था स्लेव्स का, और उनकी पोजीशन सोसाइटीज में क्या थी. और आगे हम लोग इससे रोमन एम्पायर में हम लोग देखेंगे, वी शैल सी दैट कि रोमन slaves, or next the women's condition, what were the good, they were, women's were the very good conditions in Rome. उनकी कंडीशंस एक बहुत ही अच्छी कंडीशंस थी, जो कि फॉर विच मॉडर्न टाइम हम उसका इंडियन वुमेन्स कंडीशन से और रोमन वुमेन्स कंडीशन से हम लोग इसका. थर्ड थिंग कि रोमन एम्पायर्स में जो क्वाइंस होते थे, सिल्वर क्वाइंस, दिस वाज द ब्रॉट फ्रॉम द स्पेन से लाया जाता था. सिल्वर वर, स्पेन सप्लाइड द सिल्वर फॉर मेकिंग द क्वाइंस. लेकिन इट इज द वेरी मैटर ऑफ दिस टाइटल दैट, और सरप्राइज है कि जब एग्जॉस्ट हो गया वहाँ का माइनिंग माइंस, सिल्वर माइंस, सप्लाई बंद होने लगा, रोस्ट होने लगा, तो रोमन्स जानते हैं सिल्वर के बदले में उन्होंने गोल्ड क्वाइंस चलाए, सिल्वर के ये में गोल्ड क्वाइंस, और इससे गोल्ड क्वाइंस को उन्होंने प्रैक्टाइज किया. और
ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है वहाँ का, ये स्टडी में एक आपका पार्ट रहेगा। और along with that, सेकेंड, जूलियस सीजर, रिपब्लिक के was now always the king's triad। ऐसा नहीं है, सीनेट और किंग में एक कांस्टेंट लड़ाई थी पोजीशंस के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सीनेट वाज सो डोमिनेंट इन द रिपब्लिकन सिस्टम कि इसको एरेडिकेट नहीं किया जा सकता और ऑलवेज रिमेन द रेस्पेक्ट। ओके, तो वी शैल सी दैट कि हाउ द रोमन एम्पायर, हाउ मेनी वॉर्स द रोमन्स फाउट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द वॉर, and which country came under the Roman empires, which area, and how those areas were administered by the so vast area was under the control of the Romans, and how they handled the administration there. And moreover, we shall see that these Romans people, Julius Caesar का आपने नाम सुना होगा, he was also, he is also associated, was associated with the history of the Romans। तो रोमन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। अब पहले ये कि इट वाज द वेरी वास्ट एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर द थ्री कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन, विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। थ्री कॉन्टिनेंट्स वेयर अंडर दैट, और इंक्लूडेड टू द लार्ज पार्ट ऑफ द, आज जो लार्ज पार्ट है यूरोप का जो कंट्रीज का है, वो अंडर द रोमन एम्पायर था। और वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ है। बिगिनिंग ऑफ रोम वाज ए रिपब्लिक। नाउ रिपब्लिक कहने का मतलब, विच काइंड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रिपब्लिक? कैन यू डिफाइन दिस, एनीबॉडी? आप डिफाइन कर सकते हो कि विच, व्हाट इज द रिपब्लिक, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी? रिपब्लिक क्या है? Anybody from you? Can you define? Republic is a that form of the government। मैंने आप पढ़िएगा कि बार बार रिपब्लिक वर्ड आएगा उसमें। इसका मीनिंग होता क्या है एक्चुअली? हम द रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी, वी ऑल, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअल रिपब्लिक? Republic is that form of the government, pattern of the government, in which the head of the state is a person who is elected directly or indirectly people of that country, or he or she does not belong to the any, he or she does not belong to the any dynastical order or hereditary, does not possess and hold their position on the basis of the hereditary। So this kind of the republic is, this kind of the government is called the republican form of the government। जैसे हमारा भारत भी एक रिपब्लिक है, क्यों, why? And who is the head of our republic? President of India। The President of India is now elected by an electoral college which is consisted of the both houses, elected members of the both houses of the parliament, and as well as the elected members of the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad। Electoral college, that is the constituted of that by a single transferable transferable voting system by the preferential single transferable voting के सिस्टम से। ठीक है, तो हम रिपब्लिक का ये मतलब है कि हमारा जो हेड होगा, जो सॉवरेन होगा स्टेट का, वो इलेक्टेड नहीं होगा, सॉरी, वो डायनेस्टिकल ऑर्डर से नहीं आएगा, वो हेरेडिटरी नहीं होगा, वो क्या होगा कि लोगों के थ्रू इलेक्टेड, अंडरस्टैंड, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो भारत का इंडियंस जो प्रेसिडेंट हैं तो कैसे आते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्टली? डायरेक्टली ना, राइट, यू आर टेलिंग राइट। बहुत से बच्चे बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, आई रियलाइज, आई फील, and I am very happy my students sitting and listening, they are very intelligent। Okay, now let's say move ahead।
फर्स्ट रिपब्लिकन से और द लास्टेड अराउंड द 500 years. ये रोमन एम्पायर था, दैट इज द 5 century, till the 5th century this lasted. And now the Roman expansion itself significantly became the three Punic wars fought during the period. और इसने अपने expansion के process में थ्री प्यूनिक वॉर्स इन्होंने फाइट किया, और 264 से लेकर 146 के बीसी के बिफोर क्राइस्ट के बीच में ये बैटल हुआ. एंड रोमन वाज ए ग्रेट एम्पायर, ये तो नो डाउट, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स. और नाउ द वर्ल्ड ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशंस नाउ फ्लोरिश्ड इन द रोम, और दुनिया का एक ग्रेट सिविलाइजेशन यहाँ फ्लोरिश्ड हुआ. एंड मोर ओवर द रोमन्स embraced the wealth of local culture and the language. उन्होंने जहाँ भी अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, वहाँ की वेल्थ, वहाँ की कल्चर्स को वैल्यूज. नॉट ट्राई टू डोमिनेट द रोमन्स कल्चर देयर, नो, they learned from those cultures something and embraced the wealth of the local culture and the language. रोमन की फीचर्स ये था इस वास्ट एम्पायर का कि इट्स हैड द many the position many territories were under its control, many states were, but इन्होंने क्या किया कि they did not impose their own Roman culture on them, no, they now respected and tried to get the knowledge from those cultures. उन कल्चर से उन्होंने नॉलेज गेन करना गेन किया, उसका रेस्पेक्ट किया और इनरिच किया रोमन कल्चर्स. वहाँ से टेकिंग द कल्चरल से कल्चरल कल्चरल वेल्थ वहाँ से लाए और उसको रोम को और ज़्यादा ये ब्यूटिफिकेशन किया गया और मोर ओवर कल्चरली रिच किया गया, इनकल्चर्ड किया गया. एंड मोर दैट हियर द कल्चर, इनफैक्ट द रोमन लैंग्वेज, वुमेन हैड द स्ट्रॉन्गर लीगल पोजिशन. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो वहाँ की वुमेन्स थी रोम की, उनका बहुत लीगल पोजीशन था, लीगल पोजीशन बहुत स्ट्रांग था. कानून तो बाय लॉ दे हैड द राइट्स इन द सोसाइटी बाय द लॉ, लेकिन हमारे सोसाइटी में वो स्टिल वी आर मेकिंग आवर एफर्ट टू गेट दैट क्लाइमेक्स. उस चीज को हम पाने के लिए क्या करते हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन द रोमन्स वुमेन एंजॉयड the status for which we are still the women of our country are struggling for that. Now, moreover, and Roman society, remote past, they don't have, and so but the economy was the mainly run through. मैंने पहले भी कहा कि वहाँ की जो इकोनॉमी का बेस था रोमन इकोनॉमी, that was the based on the slaves. Slaves now contributed and played the very important role on that. And moreover, रोमन इकोनॉमी के लिए स्लेव्स और हैपेंड ए मेजर कॉज फॉर, और इसके साथ साथ स्लेव्स के लिए जितना सपोर्ट हुआ स्लेव्स ने दिया, लेकिन अगर अल्टीमेटली आप आगे पढ़ेंगे कि वहाँ के जो डाउनफॉल है रोम का, वो दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द स्लेव्स आल्सो. इन स्लेवरी सिस्टम्स की वजह से उनकी डाउनफॉल भी हुई और उनका इकोनॉमिक स्टेबल्स भी हुआ. तो दो साइड्स हम पॉजिटिव. और अब फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग थ्रू दैट हमें जानना है कि हाउ टू, किसी भी देश का, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, यू ऑल आर द, तो गोइंग टू द स्टडी ऑफ द एनी कंट्री एंड द एनी स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि व्हाट इज द बेस एंड द सोर्सेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दैट कंट्री एंड दैट किंगडम्स. क्योंकि सोर्सेस पर ही हम चल सकते हैं. सोर्सेस वी कैन कंपोज, वी कैन कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री किसी भी जगह का. तो सोर्सेस, तो कोई भी जगह का जो एनी स्टेट्स हैं, टेरिटोरीज है, वहाँ की हिस्ट्री हम कैसे जानते हैं, सोर्सेस. तो रोमन की हिस्ट्री भी जो कंस्ट्रक्ट की गई वो सोर्स पर किया गया. एंड जैसे आप मैंने कहा ना, बात किया था हम लोगों ने मेसोपोटामिया के बारे में, तो वहाँ की हिस्ट्री का सोर्सेस क्या है, हिस्ट्री जानने के लिए वहाँ के बारे में
अबाउट दैट क्या सोर्सेस हैं बताइए? टैबलेट्स है ना सोर्सेस, और तो रिमेन्स वगैरह सब ठीक है, लेकिन टैबलेट्स, रिटेन टैबलेट्स स्पीक्स ए लॉट अबाउट द हिस्ट्री एंड द कल्चर, यू नो ना। तो फर्दर सेवरल सोर्सेज रिकंस्ट्रक्टिंग रोमन हिस्ट्री, दिस कैन, हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन सोर्सेज को, एंड दिस सोर्सेज कैन बी द डिवाइडेड। द फर्स्ट इज द टेक्स्ट। किसी भी देश का जो सोर्सेस होते हैं वो टेक्स्ट होता है, पहला चीज। सेकंड, अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स में क्या आते हैं, डायरीज आते हैं, किसी ने डायरी लिखकर छोड़ दी, किसी ने जो कॉरस्पॉन्डिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट्स और किंग्स के बीच, बिटवीन दैट जो कॉरस्पॉन्डिंग होता है वो भी सोर्सेस है एक। और बहुत से लोगों ने पर्सनल राइटिंग्स करते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। और या वहाँ का कोई रिटेन अदर अदर रिटेन जो मैटर्स है कम्स अंडर द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स ये आर्काइव्स में मिलते हैं जहाँ के प्रिजर्व किया जाता है, तो ये भी हमारे हिस्ट्री के मेन सोर्स है। और थर्ड में आप मटेरियल रिमेन्स, आप जानते हैं कि बिल्डिंग्स, यूटेंसिल्स, वेयर्स, फ्रैगमेंट्स, और बो ये बीड्स, ऑर्नामेंट, है ना, स्टोन्स, बहुत से, एवरीथिंग विल कम अंडर द रिमेन्स। और उसके आधार ऑन दैट ग्राउंड हम ये हिस्ट्री को वी कैन रिकॉन्स्ट्रक्ट। एंड मोर ओवर टेक्स्ट क्या है, पीरियड रिटेन बाय कंटेम्पोररीज एंड द टेक्सचुअल सोर्सेस। और उस वक्त हर टाइम में, एवरी एज में, अगर राइटिंग वो सिविलाइजेशन जानता है तो क्या है कि वो राइटिंग, इंटेलेक्चुअल्स राइटिंग करते हैं, हिस्ट्रियंस है, दे नाउ राइट्स एंड नैरेटिव्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन ईयर बाय ईयर। और उसमें क्या है कि नैरेटिव्स जो किए जाते थे, जो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उसको लिखा जाता था ईयर बाय ईयर। जैसे आज भी क्या है, हम लोग घटनाओं को या इंसिडेंट्स को ईयर बाय ईयर कंपोज करते हैं या लिखते हैं। जो पहले का भी जो हिस्टोरियंस है वो डेट्स और ईयर्स भी लिखते थे, बहुत में तो मिसिंग है लेकिन बहुत से ईयर्स देते थे। तो ईयर बाय ईयर राइटिंग्स होता था, और इस ईयर बाय ईयर राइटिंग्स को क्या है, एनल्स कहते थे, एनल्स। एंड इस ईयर बाय ईयर राइटिंग्स में क्या चीज इंक्लूड होते थे, जैसे मान लो सपोज द लेटर्स, लेटर्स की कोरस्पॉन्डिंग हुआ, स्पीचेज किसी का है, किसी ने सरमन्स दिया, किसी ग्रेट सेंट्स ने जो सरमन्स दिए, जो उपदेश दिया उसने लोगों को, वो भी एक ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल से सोर्सेस बनते हैं। और इसमें लॉज आते हैं, जो कानून है, किस तरह का कानून था, हमारे पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे हिस्ट्री बताते हैं। कानून जो रिटेन होता था, कानून, लॉ, तो उससे भी हम हिस्ट्री, इतिहास के लिए हमारे लिए कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, हाउ द पीपल्स वे रूल्ड, बाय विच काइंड ऑफ द रूल्स, रूल्स लिबरल था या टॉर्चरस था, ओके, क्या लीगल था क्या इलीगल था, ये हमारे क्या में आता है, हमारे टेक्सचुअल से राइटिंग्स में आता है। एंड मोर ओवर द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन तो देते हैं, एंड इसके साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, हमारी इकोनॉमिक के कंडीशंस क्या था रोम का उस वक्त का, इसके साथ साथ सोशल कंडीशंस क्या था, सोसाइटी यानी कि सोशल स्ट्रक्चर किस तरह का था, कितने स्ट्राटा थे सोसाइटी में, अपर, लोअर और मिडिल, और सबसे लोएस्ट स्ट्राटा पे कौन था, सबसे हाईएस्ट स्ट्राटा पे कौन था। तो दिस काइंड्स ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडीशंस एंड कल्चर ग्रोथ द कंटेंट। और इसके साथ साथ कल्चरल ग्रोथ कैसे हुआ, कल्चरल ग्रोथ, about that we find the history textual से information और by the text। नेक्स्ट थिंग कि डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट्स से इंस्क्रिप्शन और द पेपिरस, पेपिरस से पर्टिकुलरली कम अंडर द डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। जो पेपिरस होता था, और ये एक तरह के ग्रास से बना हुआ एक पेपर आप कर सकते हैं, यू कैन से, एक सर्टेन काइंड ऑफ द ग्रास से, और उस पर राइटिंग की जाती थी, इसको हम लोग पेपिरस, और इस राइटिंग्स को जो कंपोज करते थे वो
पेप्रोलॉजिस्ट कहा जाता था। पेप्रोलॉजिस्ट इस तरह के ग्रास को मिक्स करके एक प्रोसेस से उसको राइट करने के लिए बनाया जाता था पेज की तरह, तो उसको पेपिरस कहा जाता था। एंड नाउ so these documents are written on the paper. Okay, students, I suppose that time is going to be over. और नेक्स्ट हम लोग सोर्सेस पर और आगे रोम की हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड। और थैंक यू अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट पीरियड में सोर्सेस और जैसे मटेरियल रिमेन्स है उसमें, और आफ्टर दैट रोमन एम्पायर्स की कुछ जोग्राफिकल सेटअप्स हम फिर डिस्कस करेंगे, और देन आफ्टर आगे हम प्रोसेस करेंगे ग्रेजुअली। जैसे आपने मेसोपोटामियन सिटीज को पढ़ा, समथिंग यू लर्न, कुछ तो जाने, कुछ रीडिंग करिएगा घर पे एक बार दो बार, और जो भी है आई एम विथ यू एंड फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।